Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So friends, ajiro video re ame revise kariba the chapter alternating current for the upcoming board examination 2023. तो जो माने upcoming board exam appear करे को जाउछंती, for them this video is going to be very useful. आजिर वीडियो रे आमे डिस्कस करिबा important concepts from this chapter, important formulas and some of the expected questions from this chapter. So let's begin. So first आमे discuss करिबा about the general form of alternating current and voltage. So मन रखो alternating current रो general form कौन ना I is equal to I naught sin omega t. आपको मैं लिखी पारिबी I naught sin 2 pi f t. So what is I? I होची instantaneous current. What is I naught? I naught होची peak current बा maximum current. And omega होची angular frequency of AC. And omega को मैं लिखी पारिबी 2 pi f, where f is the frequency and t is the time. तो एटा होची alternating current रा गोटे general form. Similarly, if I write the general form of alternating voltage, सेटा कोन आसीबो V equal to V naught sin omega t, that equal to V naught sin 2 pi f t. So this is the general form of alternating current and this one is the general form of alternating voltage. Okay. So I naught माने कौन? I naught होची peak value of alternating current and what is V naught? V naught होची the peak value of alternating voltage. Next I discuss करिबा जे what is the average value of AC and what is the RMS value of AC. So remember that जत्ते बड़े आमे गोटे AC रो average value बाहर करूचे, if we find the average value over a full cycle, the answer will be 0. तो मन रखो गोटे alternating current रो average value over a full cycle is always 0. सेमती गोटे alternating voltage रो average value over a full cycle is equal to 0. So it is meaningless to discuss about or to talk about the average value of AC over a full cycle. That's why we always discuss about the average value of AC or the mean value of AC over a half cycle. तो जदि आमे गोटे हाफ साइकिल नबा तो हाफ साइकिल रे एवरेज वैल्यू केते आसीबो, एटा आसीबो 2 I naught by pi बा 2 by pi times of the peak value of current. आमे जानि जे I naught होची peak value, so peak value रे आमे मल्टीप्लाई कर देबा 2 by pi, that is the average value of the AC over a half cycle. ठीक सेमती average value of alternating voltage over a half cycle सेटा केते हबो, सेटा हे जिवो 2 into V naught by pi. Okay, then आमे डिस्कस करिबा what is the RMS value बा root mean square value. So IRMS एटा हबो केते I naught by root 2 बाकुम लिखि परिबी 0.707 times of I naught. ता माने the root mean square बा RMS value of alternating current is 0.707 times बा म कहि परिबी 1 by root 2 times of the peak current. ठीक सेमती VRMS, the RMS value of voltage, alternating voltage, सेटा केते हबो, सेटा हे जिवो V naught by root 2 बाकुम लिखि परिबी 0.707 times of V naught. So this is all about your average value and your RMS value. तो एग्जाम रे मे बी क्वेश्चन आसी परे टू डिफाइन एवरेज वैल्यू, टू डिफाइन आरएमएस वैल्यू एंड टू फाइंड एक्सप्रेशन फॉर देम. सो यू हैव टू प्रैक्टिस द डेरिवेशन ऑफ दीज टू फॉर्मुलाज. एवरेज वैल्यू रा फॉर्मुला में डिराइव करबा एंड हाउ टू डिराइव द फॉर्मुला फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज. सो यू मे गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस डेरिवेशन. तो एबे में जो पढ़िले जे एटा होची गोटे अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, एटा होची वोल्टेज इक्वेशन. तो ए इक्वेशन ऊपर कोन कोन क्वेश्चन आस परे, लेट अस डिस्कस अबाउट इट. तो जदि मो अल्टरनेटिंग करंट किबा वोल्टेज को यदि मो गोटे ग्राफिकल फॉर्म रे रिप्रेजेंट करिवि, देन से ग्राफ केमते आसीबो, द ग्राफ विल बी साइन फंक्शन. एमती गोटे ग्राफ आसीबो. ओके,
तो एटा होची 0, एटा होची गोटे पॉजिटिव हाफ साइकिल, एटा होची नेगेटिव हाफ साइकिल एंड एटा होची तार हाफ टाइम, एटा होची तार फुल टाइम। तो 0 रु t एटा होची गोटे फुल टाइम पीरियड। ठीक अछि। तो एबे देखो गोटे कंप्लीट साइकिल रे हम कोन देखुचे, इन ए कंप्लीट साइकिल वी आर गेटिंग वन पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड वन नेगेटिव हाफ साइकिल। तार मीनिंग कोन, तार मीनिंग होची अल्टरनेटिंग करंट कोन हुए, गोटे फुल साइकिल रे दुई थर से तार डायरेक्शन को चेंज करे। एटा होची पॉजिटिव हाफ साइकिल, एटा होची नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एटा होची टाइम t/2। तो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 रे द करंट वाज 0 एंड देन इट गोज अपवर्ड इंक्रीजेस आसिकी तार पीक वैल्यू रे पहुंचबो, देन पुनी डिक्रीज हेबो आसिकी 0 रे पहुंचबो, देन कोन हेबो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज एंड अगेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन द करंट विल इंक्रीज, it will reach at the maximum value and then it will decrease and come to 0। ता माने 0 रु पीक पर्यंत पहुंचवा पाई, 0 रु पीक वैल्यू पर्यंत पहुंचवा पाई जो टाइम लागिबो से टाइम केते हबो। सो जदि मैं एमती लाइन ड्रा कर देबी, हमें देखि परिबा जे एटा होची ए हाफ साइकिल रो हाफ, माने एटा जो क्वार्टर, जदि एटा हबो t/2 एटा हे जिवो t/4। So 0 it have a t/4, it have a t/2 and this time will be 3t/4 and this time is 4t/4 by t। तो यूजुअली आमे जदि टाइम पीरियड देइची तो आमे फ्रीक्वेंसी पाई जिबा, फ्रीक्वेंसी केते हबो, फ्रीक्वेंसी जिवो 1 बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कहिथिबो सेकंड रे, तो फ्रीक्वेंसी आसीबो सेकंड इनवर्स बा हर्ट्ज। And remember that in India the frequency of AC is 50 Hz। ता माने गोटे सेकंड रे ए भली 50 टा साइकिल पास करिवो। सो फ्रीक्वेंसी रे मीनिंग कोन, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो इंडिया रे AC रा फ्रीक्वेंसी केते 50 Hz, तार मीनिंग कोन, गोटे सेकंड रे 50 such cycles are passing। ता माने in 1 second there are 100 हाफ साइकिल्स, 50 फुल साइकिल्स और 100 हाफ साइकिल्स। ठीक अछि। तो एबे गोटे क्वेश्चन देइची बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। क्वेश्चन कोन देइची ना, वोल्टेज केते कहिची v इक्वल टू v0 sin ओमेगा t, वेयर द फ्रीक्वेंसी f केते कहि देइची, f कहि देइची 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो से पचला जे एट ए टाइम t इक्वल टू, at a time t equal to 1/600 second, at a time t equal to 1/600 second, what is the instantaneous value of EMF। तो क्वेश्चन कौन देछि, एटा होछि गोटे जनरल फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज v इक्वल टू v0 sin ओमेगा t। एठी फ्रीक्वेंसी कते कहिछि 50 हर्ट्ज कहि देछि। कोन पचारछि t इक्वल टू 1/600 सेकंड रे what will be the instantaneous value of the alternating voltage by EMF। तो एबे कोन करबा, एठी हमें लिखिबा एठी जे v इक्वल टू, एठी v होची इंस्टेंटेनियस वैल्यू। त माने जदि हमें t रो वैल्यू को चेंज करि जिबा, द वैल्यू ऑफ v विल आल्सो चेंज। तो जते बडे t रो वैल्यू आसीबो 1/600 सेकंड, पर्टिकुलर सेही टाइम रे केते आसीबो द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय EMF। सो v को लिखि परिबी v0 sin 2 pi ft। तो एटा हे जिवो v इक्वल टू v0 sin 2 pi f होचे केते 50 into t। तो एटा हे जिवो v इक्वल टू v0 sin 100 pi t। ठीक अछि। तो एटा होची जनरल फॉर्म ऑफ दिस वोल्टेज। तो पचाछि कोन ना, एई टाइम रे पर्टिकुलर एई मोमेंट रे केते आसीबो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हमें कोन करबा, इन प्लेस ऑफ t वी विल पुट दिस वैल्यू। तो कोन होबो एटा v0 sin 100 pi, in place of t I will put 1/600। जेतु टाइम टा ऑलरेडी सेकंड रे कहि देछि, इट इज इन SI यूनिट। सो सेमति मु पुट कर देबी। तो एटा हे जेबो केते, एटा 6 हे गेला। तो एटा हे जेबो v0 sin pi/6। सो sin pi/6 माने sin 30, एटा अब हाफ हे जेबो। सो इट इज इक्वल टू v0/2। ता माने t equal to 1/600 second रे the instantaneous value of the voltage will be half of the peak value। ठीक अछि। तो एई वे रे हमें एमती क्वेश्चन सॉल्व करि परिबा।
तो जदि आम मन रखि जनरल इक्वेशन को एंड आम जानथिबा जे ईच टर्म रा मीनिंग कोन देन आम आराम से आंसर को बाहर कर दे परिबा ओके आ बेले बेले एमती भी क्वेश्चन पचा दे पारे सपोज इक्वेशन देथिबे एठी v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t फ्रीक्वेंसी को देथिबो 50 हर्ट्ज क्वेश्चन पचार थिबो व्हाट इज द टाइम टेकन by the EMF to reach at the peak value from zero तो जदि आम इक्वेशन देखा जदि आम टी को 0 पकई देबा तो v 0 हो जिवो त माने इनिशियली माने एट t इक्वल टू 0 v इक्वल टू 0 अछि तो से पचारि जे केते टाइम परे वोल्टेज हे जिवो पीक हे जिवो माने द वोल्टेज विल रीच एट द पीक वैल्यू तो जदि आम फिगर देखा जेमती मु कहितली 0 रु पीक रे पहुंचे पई 0 रु पीक रे पहुंचे पई टाइम के दरकार ना टाइम पीरियड रो 1/4 ठीक अछि t/4 दरकार ताहले t केते हे जिवो माने टाइम केते दरकार हबो ना 1/4 ऑफ टाइम पीरियड आ मैं जानिचे जे जदि f होची 1/t तो t केते हे जिवो t हे जिवो 1/f हे जिवो तो t जगह में लिखि परिबी 1/f लिखि परिबी तळे गोटे 4 अछि तो एटा हे जिवो 1/4f हे जिवो जेतु f कहिची 50 हर्ट्ज तो एटा केते हबो 1/4 into 50 एटा हे जिवो 1/200 सेकंड ता माने जदि गोटे एसी रो फ्रीक्वेंसी अछि 50 हर्ट्ज ताहले 1/200 सेकंड टाइम लागिवो बाय द वोल्टेज और बाय द करंट टू रीच एट द पीक वैल्यू बा टू रीच एट द मैक्सिमम वैल्यू starting from the 0 okay so in this way you can use this formulas to solve this type of questions ठीक अछि तो हमें ए टाइप रो क्वेश्चन भी एग्जाम में एक्सपेक्ट करि परिबा नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट आउ करेस्पोंडिंग सर्किट पाई हमें ड्रॉ करिबा द फेजर डायग्राम तो हमें फर्स्ट डिस्कस करिबा प्योर इंडक्टिव सर्किट सॉरी प्योर रेजिस्टिव सर्किट फर्स्ट ला कोन प्योर रेजिस्टिव सर्किट सो मन रख जदि आमे गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट नबा एंड वी कनेक्ट एन अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ वोल्टेज और ईएमएफ एटा होची अल्टरनेटिंग वोल्टेज रो सिंबल एटा एंड एटा होची रेजिस्टेंस आर तो जदि v अच्छी कहते v अच्छी v नॉट sin ओमेगा t आमे गोटे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करिचे तार इक्वेशन कोन ना v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t तो आमे करेस्पोंडिंग सर्किट रे करंट केते पाइबा बा करंट रो एक्सप्रेशन कोन आसीबो एटा आसीबो i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t जदि v थिबो v नॉट sin ओमेगा t तो करंट आसीबो i इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t ता माने there is no phase difference between voltage and current there is no phase difference between voltage and current कहीं कि ना voltage रे sin पर ओमेगा t केवल अछि आ current रे भी sin पर ओमेगा t अछि सो प्लस माइनस किछ नाही माने प्लस माइनस π/4 की π/3 की π/2 भी किछ नाही दैट्स व्हाई देयर इज नो फेज डिफरेंस आमे कहि परिबा phi इक्वल टू 0 the phase difference is equal to 0 okay and ebe kon habo na जो लिखा है I naught is the peak value of the current एटा कहते हैं जो एटा है जो v naught by r I naught is equal to v naught by r माने peak value of voltage divided by the resistance okay and एबे कोन हबो जदी हमें देखिबा जे resistance the resistance of a metal or of a conductor does not depend on frequency remember this important point resistance does not depend on frequency ता माने गोटे रेजिस्टर रेजिस्टेंस ता एसी पाई जहा डीसी पाई से जदी हमें गोटे 5 ओम रेजिस्टेंस लबा ताकू लगेबा गोटे बैटरी रे किबा गोटे एसी सोर्स रे देन रेजिस्टेंस से सेम 5 ओम रहिबो इट विल नॉट चेंज फॉर डीसी और फॉर एसी ठीक अछि ता माने फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करिवो नाही तो जदी आसीबो क्वेश्चन जे गोटे ग्राफ प्लॉट करो कहा का भितरे
फ्रीक्वेंसी एंड रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी गोटे ग्राफ प्लॉट करो then the graph will be a straight line parallel to the frequency axis বা parallel to the x axis frequency में change करिबा but resistance will never change okay and जदि हमें phasor diagram draw करिबा केमति draw करिबा simple जिंस since there is no phase difference between voltage and current ता माने जदि एटा होची voltage रा phasor v होची कते v naught sin omega t then current रा phasor भी सेमति आसीबो the phasor for current and phasor for voltage they will coincide तो I हे जीवो I naught sin omega t और v केते अछि v अछि v naught sin omega t तो ए जो एंगल डा अछि this angle will be omega t so you can see that voltage and current they coincide there is no angle between the two phasors ता माने it signifies that there is no phase difference between voltage and current okay and a case रे average power केते आसीबो average power in a pure resistive circuit सेटा केते आसीबो vrms माने the rms value of voltage into irms बा rms value of current ठीक अछि vrms into irms जदि voltage रो peak value देथिबो आउ current रो peak value गिवन थिबो so in terms of peak value हमें कोन लिखिबा ना vrms होची v naught by root 2 irms होची I naught by root 2 तो एटा केते हेजिबो एटा हेजिबो v naught I naught by 2 ठीक अछि तो आइदर हमें यूज करि परिबा p average equal to vrms into irms किबा हमें यूज करि परिबा p average equal to v naught I naught by 2 ठीक अछि so this is all about your pure resistive circuit next हमें डिस्कस करिबा a pure inductive circuit तो एटा गोटे 2 मार्क क्वेश्चन आस पारे जे जदी गोटे प्योर इंडक्टर को हमें एसी वोल्टेज दउचे v इक्वल टू v नॉट sin omega t रो देन डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द करंट ठीक अछि बट मु ताको डिराइव करबिनी केवल मु पॉइंट्स कहि दिबी माने वोल्टेज इक्वेशन कोन हबो करंट इक्वेशन कोन हबो डेरिवेशन पार्ट ऑलरेडी बुक्स रो अछि यू कैन रेफर टू दैट सो दिस इज ओनली फॉर रिवीजन पर्पसेस तो एथि हमें किछि स्पेशल किछि डिराइव करिबानी तो v होची v नॉट sin ओमेगा t आउटा होची हमर इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस l एटा होची गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट ता माने एठी में अज्यूम करूचे जे हमें जो कॉइल नैचे टू मेक द इंडक्टर दैट कॉइल हैज नो रेजिस्टेंस practically this is not possible but theoretically you can assume that that wire the coil is made from a resistance less wire but this is practical not possible तो जदि हमें गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट नबा एंड इफ वी कनेक्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स टू इट देन जदि v अछि v नॉट sin ओमेगा t तो एबे करंट रे इक्वेशन कोन आसीबो I हेजिबो I नॉट sin ओमेगा t minus pi by 2 I equal to I नॉट sin ओमेगा t minus pi by 2 ता माने एठी कोन हबो एठी करंटटा लैग करिवो द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज by an angle of pi by 2 so मन रखो गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे कोन हबो वोल्टेज लीड करिवो करंट लैग करिवो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज current lags behind the voltage by pi by 2 ठीक अछि ता माने एठी फेज डिफरेंस आसीबो कते पाई बाय 2 आसीबो एठी देखो वोल्टेज और करंट रो किछि फेज डिफरेंस नथला बट इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट करंट लैग करिवो वोल्टेज लीड करिवो तो एठी फाई कते हिजिवो फाई हिजिवो 90 डिग्री बा पाई बाय 2 रेडियन ठीक अछि तो जेमते हम लिखितले जे इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट व्हाट इज द आई नॉट होची v नॉट बाय रेजिस्टेंस माने पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ठीक सेमती इन केस ऑफ प्योर इंडक्टिव सर्किट I नॉट केते आसीबो I नॉट हे जिवो v नॉट बाय xl v नॉट बाय xl तो ये xl रो मीनिंग कोन xl को हमें कहिबा एटा होची इंडक्टिव रिएक्टेंस xl इज इंडक्टिव रिएक्टेंस मन रखो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस भितरे डिफरेंस कोन ना रेजिस्टेंस होची इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंदि मु कहली जे जदि हम रेजिस्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी रो गोटे ग्राफ प्लॉट करिबा द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द फ्रीक्वेंसी एक्सिस ठीक से होई जदि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी रो ग्राफ ड्रा करिबा
द ग्राफ विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन माने इट विल नॉट बी पैरेलल काहेकि ना इंडक्टिव रिएक्टेंस एटा डिपेंड करिवो फ्रीक्वेंसी ऊपर तबे हम देखिबा जे इंडक्टिव रिएक्टेंस रो फार्मूला कोन तो एक्सएल आको में कहबा इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस काहे आसे ना ड्यू टू द सेल्फ इंडक्शन जते बडे गोटे वेरिएबल करंट फ्लो होची इन द इंडक्टर ड्यू टू लेंज लॉ हम कोन जानचे ना द इंड्यूस्ड करंट जो सेल्फ इंडक्शन पाई जो इंड्यूस्ड करंट पाइबा ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड करंट देयर विल बी सम ऑपोजिशन फॉर द चेंज इन करंट ता माने जेहेतु कोन होची एसी रे कंटीन्यूअसली करंट चेंज होची सो दैट चेंज इन करंट will produce some change in magnetic flux in the inductor and that's why we get induced current. Our induced current nature con the induced current will oppose the change in magnetic flux by the change in current. So Lenz law is responsible for the inductive reactance. Okay, our inductive reactance formula con it is omega into L. Our ame jani che what is omega? Omega hoji angular frequency. ताको लिखि परिबी 2 pi f. So it is 2 pi f into L. ठीक है सो XL by inductive reactance is equal to 2 pi FL. So 2 गोटे constant, pi गोटे constant and for a given inductor L भी constant. ता माने जदि में फ्रीक्वेंसी को चेंज करी जिबा XL भी चेंज हे जिवो आ जदि हम देखिबा जे XL होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मोर द फ्रीक्वेंसी मोर इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस जदि हमें गोटे ग्राफ प्लॉट करिबा बिटवीन XL versus frequency the graph will be a straight line like this जते बड़े frequency हे जिवो 0 XL हे जिवो 0 when frequency is 0 XL is also 0 ठीक আছে then we have to draw the phasor diagram तो केमते ड्रा करिबा so voltage lead करूची current lag करूची pi by 2 रे suppose this vector is for the voltage but this phasor is for voltage akum likhibi v equal to v naught sin omega t so starting from the x axis jodi me anti clockwise move karuche ta mane the angle is positive तो एटा होची angle omega t then current lag करिवो pi by 2 रे तबे हम कोन करबी मो current पई जो phasor draw करबी बा जो vector draw करबी that vector should be perpendicular to the phasor for voltage ता माने the phasor of current is perpendicular to phasor of voltage ताकु म एपटे ड्रा करि पारे किंतु एपटे ड्रा करिबिनी काहे कि नाटा ओमेगा टी प्लस pi by 2 हो जिवो बट आई नीड ओमेगा टी माइनस pi by 2 त केम करि म क्लॉकवाइज रे एमती ड्रा करिवे दिस एंगल इज pi by 2 तो by sign convention आमे कहि परिबा for anti clockwise rotation angle is positive for clockwise rotation angle is negative तो ए जो फेजर मु ड्रा करि छै है जो I equal to I naught sin omega t minus pi by 2 v होची कते v होची v naught sin omega t आ I कते है जो I naught sin omega t minus pi by 2 ठीक अछि so this is all about the pure inductive circuit and एठी आ गुटे पॉइंट मन रखो जेमते हम डिस्कस कले एठी जे एवरेज पावर गुटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट रे एवरेज पावर केते आसुची ना Vrms * Irms किबा V naught I naught by 2 किंतु गुटे प्योर इंडक्टिव सर्किट रे एवरेज पावर हे जिवो 0 रिमेंबर दैट इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट एवरेज पावर हे जिवो 0 काहे कि 0 हबो सेटा हमें डिस्कस करिबा आफ्टर सम टाइम So this is all about your pure inductive circuit, the pure resistive चलला, pure inductive चलला, and next we will go to a pure capacitive circuit. Pure capacitive circuit. So जब मैं कहले जे what is the basic difference between resistance and reactance? The main difference कौन ना resistance does not depend upon frequency, but reactance depends upon frequency. So number 3 इटा होची pure capacitive circuit so we have a pure capacitor and it is connected to an alternating voltage source जोटा होची v equal to v naught sin omega t ठीक अछि so when you
connect a capacitor to an alternating voltage source, what happens? The capacitor continuously gets charged and discharged, then the polarity of the two plates gets reversed after each half cycle. So एबे देखिबा जदि हमें गोटे एसी वोल्टेज अप्लाई करूचे टू ए कैपेसिटर ऑफ दिस फॉर्म v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t, तो करंट रो इक्वेशन कोन आसीबो ना i हेजिबो केते i हेजिबो i नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, i इज इक्वल टू i नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. तो वोल्टेज रे खाली ओमेगा t अछि, करंट रे ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 अछि. सो इट इज क्लियर दैट in a pure capacitive circuit the current will lead the voltage by pi by 2. In case of pure inductive circuit kon hotla, the current was lagging behind the voltage, but in case of pure capacitive circuit kon hobo, current will lead. So here the current leads EMF, current leads EMF by pi by 2. ठीक अछि, तमने phi केते होबो, phi भी हे जिवो pi by 2 होबो. जेमती प्योर इंडक्टिव रे phi थला pi by 2, सेमती प्योर कैपेसिटिव रे phi होबो pi by 2 होबो. बट द डिफरेंस इज दैट प्योर इंडक्टिव रे करंट लैग करथला, एटी करंट लीड करिवो. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ठीक अछि. एंड व्हाट इज आई नॉट, माने एई केस रे आई नॉट केते होबो, जेमते हम लिखितले जे प्योर इंडक्टिव रे व्हाट इज आई नॉट होची v नॉट बाय xl. ठीक सेमती एठी केते होबो आई नॉट ता हे जिवो v नॉट बाय xc. ठीक अछि. तो ये हम xc कोन कहबा, xc को हम कहबा कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक अछि. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्मूला कोन, जेमती इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर्मूला होची ओमेगा l बा 2 पाई fl. ठीक सेमती कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो फॉर्मूला कोन हबो 1 बाय ओमेगा c बट हे जबो 1 बाय 2 पाई fc. xc will be equal to 1 by 2 pi fc. Again 2 constant, pi constant, and for a given capacitor capacitance the c is constant. जदि में फ्रीक्वेंसी बढ़ेबा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कमी कमी आसीबो. ता माने xc is inversely proportional to frequency. Capacitive reactance is inversely proportional to frequency. More the frequency but higher the frequency, less will be the opposition given by the capacitor, but less will be the capacitive reactance. तो हम कौन देख लेना, both inductive reactance and capacitive reactance depend on frequency, but resistance is independent of frequency. It is same for DC as well as for AC. तो जदि में ग्राफ प्लॉट करिबा between the capacitive reactance XC versus frequency, then the graph will be like this. With increase of frequency the capacitive reactance will decrease. ठीक अछि. And जदि में phasor diagram draw करिबा, it is very simple. So always first I may draw kariba the phasor for voltage. So suppose this line is for voltage v equal to v naught sin omega t. This angle is pi by 2. Sorry, omega t. This angle is omega t. Now I may जो current point draw करे phasor. The phasor for current will be perpendicular to the phasor of voltage because the phase difference between them is pi by 2 by 90 degree. So इटा है जिवो करंट रो फेजरटा जोटा होची I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. तमने हमें स्टार्ट करले फ्रॉम द x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा t गले वोल्टेज रे पहुंचले, देन वोल्टेज रु अगेन हमें पाई बाय 2 जिबा कोडी पहुंचबा करंट रे पहुंचबा. त करंट रो फेजरटा केते एंगल करूची विथ x एक्सिस दैट इज ओमेगा t प्लस पाई बाय 2. So this is the phasor diagram for the pure capacitive circuit. Okay, and again in case of a pure capacitive circuit average power P average केते हबो एटा हे जिवो 0. P average will be equal to 0. So मन रखो गोटे pure resistive circuit रे average power केते आसीबो Vrms into Irms बा V naught I naught by 2. In case of pure inductive and pure capacitive circuit the average power will be 0. So this is all about pure resistive, pure inductive and pure capacitive circuit. Next I may discuss kariba series RL and series RC circuit. देखो RL आउ RC circuit एटा कोर्स रे नहीं, but for your knowledge मुझे रिवाइज कर दोची. It may be helpful in some entrance examination, but I think board exam रे एमती किसी क्वेश्चन आसीबो नहीं.
ये जो आम जो डिस्कस कले प्योर इंडक्टिव सर्किट डिस्कस कले कि प्योर कैपेसिटी डिस्कस कले से क्वेश्चन आसपे जे इफ यू सप्लाई ए वोल्टेज V नॉट इक्वल टू सॉरी V इक्वल टू V नॉट sin omega t to a pure inductor or to a pure capacitor, then derive expression for the current and draw the phasor diagram. एटा गोटे 2 मार्क क्वेश्चन आसपे कि 3 मार्क क्वेश्चन आसपे बाकी एबे देखियो हमें नंबर 4 कोन आसीबो सीरीज RL सर्किट आसीबो सीरीज RL सर्किट तो सीरीज RL सर्किट जेहेतु CBSE रो बोर्ड सिलेबस नहीं तो एथरु क्वेश्चन आसीबनी बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मु कहि दोजी जदि मैं गोटे सीरीज RL सर्किट नबा माने रेजिस्टर थिबो आ इंडक्टर थिबो सीरीज रे एंड आमे गोटे अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगे जेठी V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t तबे कोन हबो एटा होच R एटा होच L तो मैं जानछि कोन ना रेजिस्टर रे वोल्टेज करंट सेम फेज रुहे इंडक्टर रे करंट लैग करिवो वोल्टेज लीड करिवो तो जदि मैं देखिबो ओवरऑल इफेक्ट देखिबा आमे R लगे जे आ L लगे जे तो ए केस रे कोन हबो ए केस रे भी करंटटा लैग करिवो किंतु करंटटा जो लैग करिवो पाई बाय 2 एंगल लैग करिवोनी एटा किछ अलगा एंगल लैग करिवो सपोज फाई एंगल लैग करूची तो से फाई रे वैल्यू कते हबो फाई रे वैल्यू कते हिजबो tan इनवर्स xl by r बाकुम लिखि परिबी tan इनवर्स ओमेगा l by r ठीक अछि तो मन रख जदि हमें गोटे सीरीज RL सर्किट नौचे तो डेफिनेटली करंट लैग करिवो वोल्टेज लीड करिवो किंतु पाई बाय 2 एंगल नुह केवल प्योर इंडक्टिव आ प्योर कैपेसिटिव रे फेज डिफरेंस पाई बाय 2 आसे किंतु जदि हमें अलगा सर्किट नौचे से केस रे पाई बाय 2 आसीबो नाही किछि अलगा एंगल आसीबो एंड से एंगल को मु फाइ लिखुची आ से फाइ रे वैल्यू कते हबो tan इनवर्स ओमेगा l by r ता माने डिपेंड करिवो ऑन द वैल्यू ऑफ the angular frequency, the inductance and the resistance. Okay, and जदि आमे तार ग्राफटा सही तार फेजर डायग्राम प्लॉट करिबा तो फेजर कोन हबो सपोज एटा होची वोल्टेज रो फेजर V इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t where this angle is ओमेगा t then current रो जो फेजर आसीबो सेटा वोल्टेज फेजर पछकु रहिबो बट पाई बाय 2 एंगल रहिबोनी एट सम अदर एंगल तो ए जो फेजर हम ड्रा करले सेटा होची I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t माइनस phi where this angle is phi ता माने वोल्टेज रो फेजर आ करंट रो फेजर भितरे जो एंगल अछि दैट एंगल इज phi तो ए जो एंगल हला एटा हिजबो ओमेगा t माइनस phi हिजबो ठीक अछि एंड I नॉट कते आसीबो आमे देखले जदि हमें गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट नौचे तो I नॉट कते I नॉट होची V नॉट बाय R जदि हमें गोटे प्योर इंडक्टिव सर्किट नौचे व्हाट इज I नॉट V नॉट बाय XL तो जदि हमें गोटे सीरीज RL सर्किट नबा तो सेही केस रे I नॉट कते आसीबो V नॉट बाय Z ए Z रो मीनिंग कोन Z होची इंपेडेंस Z कोन Z को हमें कहिबा इंपेडेंस देखो आमे रेजिस्टेंस पढ़िले रिएक्टेंस पढ़ले एबे गोटे नुवा टर्म सिखिबा सेटा होची इंपेडेंस तो रेजिस्टेंस तो जानचे हमें इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड रिएक्टेंस कोन ना रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी हमें देखले xl केते एटा होची ओमेगा l x केते 1 by ओमेगा c तो z बा इंपेडेंस हमें जो कहूचे इंपेडेंस को एटा होची कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ता माने जदि केवल गोटे रेजिस्टर थिबो आमे कहिबा रेजिस्टेंस कहिबा जदि इंडक्टर केवल अछि किबा केवल कैपेसिटर अछि वी टॉक अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बट जदि कंबाइन हिक अछि R L अछि किबा R C अछि तो सेठे में यूज करिबा इंपेडेंस तो गोटे सीरीज RL सर्किट रो इंपेडेंस तार फार्मूला कोन हबो एटा हिजबो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर स्क्वायर रूट आकम लिखिबी R स्क्वायर प्लस व्हाट इज XL ओमेगा L यदि ओमेगा L रो होल स्क्वायर कर देबे रहि जिवो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर तार स्क्वायर रूट so this is the impedance of a series RL circuit okay and this is not in syllabus so you can ignore this one next I may discuss kariba about the series RC circuit तामाने we have a resistor and we have a capacitor resistor थिबो गोटे capacitor थिबो and they are connected in series across a
अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो जदि ये भाया गोटे सिचुएशन अच्छी जोटी आम गोटे R नहीं गोटे C नहीं तो से केस कौन हम आम जानते जे रेजिस्टर रे वोल्टेज करेंट सेम फेज रुहे कैपेसिटर रे करेंट लीड करे पाई बाई 2 रे किंतु जदि आम RC सर्किट नबा से करेंट लीड करिवो ओके बट नॉट बाई पाई बाई 2 जेमती एठी कौन करेंट लैग करुची बट नॉट एट पाई बाई 2 ठीक सेमती RC सर्किट रे करेंट लीड करिवो बट नॉट एट एंगल ऑफ पाई बाई 2 तो ये मैं आई कौन लिखा आई लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सम एंगल फाइ ये फाइटा पाई बाई 2 हेनी इट विल बी सम एक्यूट एंगल तो फाइ वैल्यू के जमी आम लिखले ये इन केस ऑफ आर एल सर्किट फाइ के फाइ हूँ tan इनवर्स एक्स एल बै आर बा ओमेगा एल बै आर ठीक सेमती ये फाइ के आसो tan इनवर्स एक्स सी बै आर बा लिखिपारि फाइ इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट इज एक्स सी 1 by ओमेगा सी तो ये 1 by ओमेगा सी आर सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेयर करंट लीड्स वोल्टेज लैग्स ओके एंड अगेन व्हाट इज आई नॉट ये आई नॉट हो V नॉट by Z सेमती Z हूँ इम्पिडेंस तो सीरीज आर एल सर्किट इम्पिडेंस के ना स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर ठीक सेमती जब आम RC सर्किट नबा तो केते इम्पिडेंस यहाँ हो आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर स्क्वायर रूट ओके आ जब आम फेजर डायग्राम ड्र करवा से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हूँ वोल्टेज फेजर V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी नेक्स्ट आम ड्र करवा करेंट आ करेंट लीड कर एंगल फाइ रे तो ये जो लाइन मुझे ड्र करी यहाँ हम I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ सो दैट यहाँ हूँ एंगल ओमेगा टी यहाँ हूँ एंगल फाइ सो द टोटल एंगल विल बी ओमेगा टी प्लस फाइ ठीक अच्छे तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज आर एल सर्किट एंड सीरीज RC सर्किट ओके सो ये दुटा जमी मुझे सिलेबस ना फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ सिलेबस ना बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ आसपे तो नेक्स्ट आम डिस्कस करवा यही चैप्टर सब इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा हूँ सीरीज LCR बा सीरीज RLC सर्किट तो ये डिस्कस करवा द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज series LCR circuit by series RLC circuit. So figure we have a resistor, an inductor and a capacitor. They are connected in series across an alternating voltage source V equal to V naught sin omega t. तो ये सीरीज LCR सर्किट केतेटा इंपोर्टेंट जिनस विषय में डिस्कस करबा आ को टाइप क्वेश्चन आसपरे तापर भी हमें डिस्कस करबा तो हमें फास्ट पढ़ले जे इन केस ऑफ ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट दे आर इन द सेम फेज देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम इन केस ऑफ ए प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज विल लीड द करंट बाय पाई बाय 2 बा करंट लैग करिवो पाई बाय 2 रे एंड इन केस ऑफ ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट द वोल्टेज लैग्स और द करंट लीड्स बाय पाई बाय 2 and we discuss about that the resistance does not depend upon frequency. Inductive reactance XL is directly proportional to frequency and the capacitive reactance XC is inversely proportional to frequency. And I mean देखले कौन इधर हमें नौचे series RL नौचे कि series RC नौचे then we talk about a new term जो है impedance and in case of series RL circuit the impedance Z equal to square root under R square plus XL square and in case of a RC circuit the impedance is Z equal to square root under R square plus XC square. तो एबे देखिबा जे सीरीज LCR सर्किट रो केतरा इंपोर्टेंट पॉइंट देखिबा तो आमे जो AC अप्लाई करिचे तार गोटे फ्रीक्वेंसी थिबो ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड आमे जानिचे XL केते XL होची ओमेगा L एंड XC केते XC होची 1 by ओमेगा C. तो सपोज आम ये एज्यूम करवा ये तीन डिफरेंट केस पॉसिबल हो पार फास्ट केस कौन जदि XL टा XC रु अधिक होगा कहीं आम जो फ्रिक्वेंसी को चेंज कर तो फ्रिक्वेंसी चेंज कले रेजिस्टेंस के चेंज हेनी किंतु इंडक्टिव रिएक्टेंस चेंज हे आउ कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी चेंज हे तो मैं फास्ट देखा कौ केस ना जदि गोटे पर्टिकुलर ओमेगा पाई जदि XL टा माने इंडक्टिव रिएक्टेंस टा अधिक हो देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ताहले कौन हम
केस 2 रे कौन डिस्कस करबा जदि XL टा कमी जीवो देन XC ताहले कौन हबो केस 3 कौन देखिबा इफ XL एंड XC आर इक्वल ताहले कौन हबो दैट इज द स्पेशल केस। तो मैं जानी चे जिते बड़े आमे स्विच को ऑन करबा एबे कोडा बंदा सब थरे गोटे सेम करंट फ्लो हबो एंड सपोज आई नॉट होची तार पिक वैल्यू ऑफ करंट। तो जदि हमें देखिबा जे अक्रॉस रजिस्टर वोल्टेज केते आसीबो माने वोल्टेज रो पिक वैल्यू केते आसीबो ताके लिखे जे VR नॉट जोटा हे जिवो I नॉट R सेमती अक्रॉस इंडक्टर व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज सेटा हे जिवो VL नॉट सेटा होची I नॉट XL एंड अक्रॉस द कैपेसिटर व्हाट इज द पिक वोल्टेज दैट इज VC नॉट ताके हमें कहबा I नॉट XC ठीक अछि। तो हमें बे ड्रा करबा फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम में केमती ड्रा करबा एठी हमें एज्यूम करचे जे XL रा होची ग्रेटर देन XC जदि XL हबो मोर देन XC ता माने VL नॉट हबो मोर देन VC नॉट ठीक अछि। तो मो फास्ट कोन करबी जेहेतु सब थरे गोटे सेम करंट फ्लो होची मो फास्ट कोन करबी गोटे फेजर ड्रा करबी व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग the current or the voltage across resistor कहीं कि जानी चे जे VR नॉट आउ current माने voltage across resistor and current they are in the same phase। तो जदि एई जो फेजर मु ड्रा करिछि जेटा शो करूछि कोन ना voltage across the resistor एटा होछि voltage across the resistor VR शो करूछि। तो एई पटे करंट भी शो करिवो कहीं कि ना voltage across resistor and current they are in the same phase ठीक है। तो एटा होची resultant current रो फेजर और एटा होची voltage across resistor रो फेजर। नेक्स्ट मु ड्रा करबी फेजर फॉर VL माने voltage across inductor। तो मैं जानि छ कोन ना इंडक्टर रे कोन हुए ना voltage टा π/2 रे लीड करे एंड करंट लैग करे। तो जेहेतु एटा होची करंट रो फेजर एंड मु ड्रा करबी VL रो फेजर तो सेटा आसीबो को पटे एमते आसीबो π/2 रे लीड करिवो तो एटा हे जिवो VL रो फेजर। बट मन रखो एमे जो लेंथ नोचे ए वेक्टर रो लेंथ एटा हबो पिक वैल्यू ठीक अछि। तो ए जो लेंथ हबो VL नॉट बड़े फेजर हबो VL रो सेमती ए जो हमें नेचे कारण एटा हबो I नॉट हबो एटा हबो VR नॉट किंतु ए जो फेजर ड्रा कराई छी कोन एटा होची वोल्टेज रो फेजर ठीक अछि। बट ए जो लेंथ अछि आपको मु लिखिबी VR नॉट हम जानि छै गोटे फेजर रो जो लेंथ थाए दैट लेंथ रिप्रेजेंट्स द पिक वैल्यू। तो ए जो लेंथ एटा होची VR नॉट दिस लेंथ इज VL नॉट एंड नेक्स्ट मु ड्रा करबी फेजर फॉर VC माने वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जोटा कि करंट रो लैग करिवो π/2 रे काहे कि ना गोटे कैपेसिटर सर्किट कोन हुए ना अक्रॉस द कैपेसिटर करंट लीड्स वोल्टेज लैग्स। तो VC नॉट रो फेजर एमते आसीबो π/2 माने लैग करूची तो एमती ड्रा करिवि। बट मु एन्श्योर करिवि कोन ना मु या एन्श्योर करिवि जे VL नॉट रो लेंथ जहा अछि ताठरो कम रहइबो VC नॉट रो लेंथ काहे कि ना लिखाइ छी XL होची X रो अधिक ता माने जदि XL टा X रो अधिक हो जिवो ताले VL नॉट टा VC नॉट रो भी अधिक हो जिवो ठीक अछि। दैट्स व्हाई मु एपटे गोटे स्मॉल लेंथ ड्रा करबी एपटे गोटे अधिक लेंथ ड्रा करबी। तो एठे में देखि परिबा जे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर बा द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो एबे हम देखिबा ए जो तीनटा वोल्टेज अछि VR नॉट VL नॉट बा VC नॉट ए तीनटा वेक्टर को सॉरी तीनटा वोल्टेज को आमे ऐड करबा वेक्टोरियली काहे कि ना फेजर डायग्राम में कोन करंती ना आमे रिप्रेजेंट करंती करंट और वोल्टेज को in the form of a rotating vector. So when we add these three voltages we get the total voltage by the supplied voltage। तो यदि मु सब पिक वैल्यू को ऐड कर देबी वेक्टोरियली I will get the peak value of the supplied voltage जोटा होची V नॉट। तो केमती ऐड करबा आगे देखिबा VL नॉट और VC नॉट रो रिजल्टेंट केते हबो जेहेतु से माने ऑपोजिट अछंती तो VL नॉट और VC नॉट रो रिजल्टेंट केते आसीबो ए पड आसीबो ए जो लेंथ एटा हे जिवो VL नॉट माइनस VC नॉट ठीक अछि। तो ए दुईटा कर रिजल्ट ना मेति के पाइले देन आको में ऐड करबा VR नॉट रे केमती ऐड करबा यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
तो जदि मु गोटे पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर देबी देन दिस कॉमन डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट केते हिजबो एटा हिजबो v नॉट हिजबो ठीक अछि जोटा होची सप्लाइड वोल्टेज रो पीक वैल्यू। तो जदि एटा होची VL नॉट माइनस VC नॉट तो एटा भी केते हबो एटा भी हिजबो VL नॉट माइनस VC नॉट ठीक अछि एंड दिस टू आर परपेंडिकुलर द एंगल इज 90 डिग्री ठीक अछि। तो एबे में अप्लाई करबा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कोन कहूची हाइपोटेन्यूस रो स्क्वायर माने v नॉट रो स्क्वायर इज इक्वल टू बेस रो स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस केते बेस रची VR नॉट तो VR नॉट रो स्क्वायर हबो प्लस परपेंडिकुलर रो स्क्वायर सेटा केते VL नॉट माइनस VC नॉट रो स्क्वायर स्क्वायर रूट ठीक अछि। तो एटा होची v नॉट स्क्वायर रो फार्मूला सॉरी v नॉट रो फार्मूला ठीक अछि कना h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो v नॉट केते हेला एटा हिजबो व्हाट इज VR नॉट ना VR नॉट होची I नॉट R ताकू हम लिखि परिबी I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL नॉट केते I नॉट XL माइनस VC नॉट केते I नॉट XC तार स्क्वायर दबा एठी देन स्क्वायर रूट दैट इंप्लाइज V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इनटू देखो एठी हम I नॉट स्क्वायर कॉमन नै जिबा एटा केते हबो एटा जिबो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC रो होल स्क्वायर देन स्क्वायर रूट। सो V नॉट इज इक्वल टू केते हबो I नॉट स्क्वायर रूट सेटा हे जिवो I नॉट हे जिवो। सो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट इनटू स्क्वायर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC रो होल स्क्वायर ठीक अछि। तो देखो एठी जदि मु I नॉट के ऊपर डिवाइड कर देबी तो मु कोन पाइबी V नॉट बाय I नॉट एटा केते हे जिवो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC रो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो एटा होची पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एटा होची पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो सीरीज LCR सर्किट रे जदि में पीक वोल्टेज और पीक करंट रो रेशियो नबा हम जानि छे वोल्ट बाय एम्पियर माने वोल्टेज बाय करंट दैट इज ओम वोल्ट बाय एम्पियर ओम होची। तो जते बेला में प्योर इंडक्टिव सर्किट कहले किंबा प्योर कैपेसिटिव कहले हम यूज करथले XL किंबा XC आ मन रखो रिएक्टेंस रो यूनिट सेटा भी ओम आसीबो ठीक अछि। रेजिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करंती ओम रे इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे आर आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओम बट एठी हम जो पाइले V नॉट बाय I नॉट पाइले एटा भी ओम होबो राइट रे कोन अछि राइट रे अछि स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC रो होल स्क्वायर। तो एई जो क्वांटिटी रहिला एई क्वांटिटी रो यूनिट मध्ये ओम आसीबो और आपको मैं कोन कहबा आपको मैं कहबा इंपेडेंस को कहबा impedance of series LCR circuit impedance of series LCR circuit बा the net opposition of a series LCR circuit ठीक अछि and the unit is also ohm। तो impedance का सिंबल कौन ता सिंबल होची Z so Z equal to R square plus XL minus XC रो होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ठीक अछि। एना होची इंपेडेंस रो फार्मूला। तो देखो जदि मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करिबा XL चेंज हबो XC चेंज हबो बट R चेंज हबोनी बट ओवरऑल Z चेंज हबो त मन इंपेडेंस आल्सो इज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओके। तो एबे में कोन देखले हमें जो रिजल्टेंट वोल्टेज पाइले बाय टेकिंग द वेक्टर सम ऑफ दीस टू वोल्टेजेस तो एडा होची सेही फेजरटा ठीक है जो लिखाई V नॉट लिखाई छी ए जो फेजरटा को एडा होची रिजल्टेंट वोल्टेज रो फेजर आ करंट रो कोटा एडा होची करंट रो। तो जदी आमे लिखी छे जे V केते V होची V नॉट sin ओमेगा t ता माने ए जो एंगलटा एडा हे जिवो ओमेगा t हे जिवो माने रिजल्टेंट वोल्टेज ता जो एंगल करूची विथ x एक्सिस दैट इज ओमेगा t and this one is the phase difference between voltage and current आउ ए जो एंगल एटा होची ओमेगा t आउ ए एंगल एटा हे जिवो ओमेगा t - phi ता माने एठी हम कोन देखले ना करंट लैग करूची वोल्टेज लीड करूची करंट लैग करूची केते एंगल रे phi एंगल रे। तो ए जो phi पाइले ए phi रे केते हबो ना हम ये ट्रायंगल देखिबा लुक एट द ट्रायंगल ए ट्रायंगल रे
tan of this phi केते हो p by b तो tan phi केते हिजबो tan phi हिजबो परपेंडिकुलर by base तो परपेंडिकुलर केते अछि vl नॉट माइनस vc नॉट बेस केते अछि vr नॉट अछि तो tan phi हिजबो vl नॉट माइनस vc नॉट डिवाइड बाय vr नॉट होची तार बेसटा तो आकम लिखि परिबी I नॉट xl माइनस I नॉट xc डिवाइड बाय vr नॉट केते हबो I नॉट r हिजबो तो सब I नॉट कैंसिल हे गेला परे tan phi आमे केते पाइले tan phi पाइ जिबा xl माइनस xc डिवाइड बाय r ठीक अछि बा phi केते हिजबो phi हिजबो tan इनवर्स xl माइनस xc बाय r so in this way आमे बाहर करि परिबा गोटे सीरीज LCR सर्किट रे व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट तो मन रखो जदि आमे जो केस 1 डिस्कस कले जदि इंडक्टिव रिएक्टेंस ता अधिक होई जिवो कैपेसिटिव रिएक्टेंस रो देन इंडक्टर रो जो आसे इफेक्ट सेटा डोमिनेट करिवो तो इंडक्टर इफेक्ट कोन ना से करंट को लैग करिवो वोल्टेज को लीड करिवो तो जेहेतु एठी इंडक्टर होउची डोमिनेटिंग तो आमे कोन देखले एठी इंडक्टर जो आसे इफेक्ट सेटा हम देखुचे माने करंट लैग करूची आ वोल्टेज लीड करूची ठीक अछि so this is about the impedance and this is the phase difference आमे बे केस 2 डिस्कस करिबा तो केस 2 रो डायग्राम हो ड्रा करिबिनी दैट इज योर होमवर्क तमे निजे से ड्रा करिवो केस 2 रे आमे कोन डिस्कस करे मु केवल इक्वेशन लिखि देबी एंड दैट इज योर होमवर्क टू ड्रा द फेजर डायग्राम योरसेल्फ तो मन रखो जदि आमे केस 2 डिस्कस करिबा केस 2 कोन केस 2 होची xl इज लेस देन xc बा xc कोन xc होची ग्रेटर देन xl त माने कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस तो सेही केसे कोन हबो जेमति मु कहली जदि इंडक्टर रो इफेक्ट अधिक रहिला त माने जदि आमे इंडक्टिव रिएक्टेंस को अधिक नै गेले देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस त इंडक्टर ता जो इफेक्ट आने सेटा हे जो मोर डोमिनेटिंग किंतु आमे केस 2 रे कोन डिस्कस करिबा कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज मोर देन इंडक्टिव रिएक्टेंस तो ए केसे कोन हबो जदि आमे v नेचे केते v नॉट sin ओमेगा t नेचे त करंट केते आसीबो एटा आसीबो I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 पळे आसीबो केते बळे सेकंड केस रे v थिबो v नॉट sin ओमेगा t करंट केते आसीबो I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस 5 अब phi केते हिजबो phi हिजबो tan इनवर्स xc माइनस xl बाय r ठीक है सेठी कोन आसला सेठी आसला phi इक्वल टू tan इनवर्स xl माइनस xc बाय r एठी केते आसीबो द phi इक्वल टू tan इनवर्स xc माइनस xl बाय r अब इंपेडेंस सेम रहिबो ऑलवेज दैट इज स्क्वायर रूट अंडर r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc होल स्क्वायर ठीक अछि इंपेडेंस के चेंज हेबनी इंपेडेंस सेम रहिबो सेम फार्मूला केवल मन रखिबो करंटटा एठी लीड करिवो वोल्टेज लैग करिवो ठीक अछि एंड फेजर डायग्राम में जो ड्रा करिबा से फेजर डायग्राम में मतलब एति के आंसर करिबा जे vc नॉट रो लेंथ अधिक रहइबो vl नॉट रो लेंथ कम रहइबो जेम तु फास्ट केस कोन करथली vl नॉट को माने अधिक लेंथी करथली vc नॉट को शॉर्ट करथली एठी उल्टा हे जिवो काहे कि ना एठी xc अछि ग्रेटर देन xl ठीक अछि सो दिस इज द सेकंड केस एबे देखिबा थर्ड केस व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट केस तो थर्ड केस कोन ना जदी आमे फ्रीक्वेंसी को एमिति सेट करबा जेमिति कोन हबो ना करंट आ वोल्टेज सॉरी ओ xl आ xc इक्वल हे जिवो केस 3 ला कोन ना इफ xl इज इक्वल टू xc जदी इंडक्टिव रिएक्टेंस आ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हे गेला ताहले कोन हबो आमे जानि छे इंपेडेंस रो फार्मूला कोन ना स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl माइनस xc रो होल स्क्वायर ठीक अछि तो जदि हमें फ्रीक्वेंसी को ओमेगा को चेंज करूचे आ गोटे पर्टिकुलर ओमेगा पाई कोन हला xl आ xc रो वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल हे गेला तो से केसले कोन हबो ए जो टर्म अछि xl माइनस xc एटा 0 हो जिवो तो इंपेडेंस केते हो जिवो r स्क्वायर प्लस 0 रो स्क्वायर रूट माने r स्क्वायर रो स्क्वायर रूट माने r हो जिवो ताले जदि xl इक्वल xc हे गेला तो इंपेडेंस केते हो जिवो r हो जिवो impedance is equal to r जोड़ा होची मिनिमम वैल्यू दिस इज द मिनिमम impedance तो मन रखि दाओ
सीरीज एलसीआर सर्किट रो मिनिमम इंपेडेंस कोटा ना इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट कहीं ना फ्रिक्वेंसी को जिते चेंज करेले भी रेजिस्टेंस चेंज होबनी आम एक्स को चेंज कर पारिबा एक्स को चेंज कर पारिबा बट वी कैन नॉट चेंज रेजिस्टेंस बाय चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी ठीक अछि। अच्छा इंपेडेंस माने कौन ऑपोजिशन जदि सर्किट इंपेडेंस टा मिनिमम हो जाउची तले कोन हबो करंट हे जिवो मैक्सिमम। तो यूजुअल केस रे आमे जो पीक करंट पाती सेटा केते हुए सेटा हो जाए V नॉट बाय जेड हुए माने पीक वोल्टेज बाय इंपेडेंस हुए ठीक अछि। तो जते बड़े इंपेडेंस बढ़ी बढ़ी जीवो आई नॉट कमी कमी आसीबो जदि इंपेडेंस कमी कमी जीवो आई नॉट बढ़ी बढ़ी जीवो जते बड़े इंपेडेंस हबो मिनिमम सेते बड़े आई नॉट हबो मैक्सिमम। तो से आई नॉट रो मैक्सिमम वैल्यू केते आसीबो ना V नॉट बाय R आई नॉट रो मैक्सिमम वैल्यू केते आसीबो V नॉट बाय R आसीबो माने पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस आसीबो। इज दैट क्लियर? आ मन रखो जते बड़े आमे एई टाइप रो सिचुएशन पाइबा दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस। तो मन रखता हो व्हाट इज रेजोनेंस ना रेजोनेंस इज द कंडीशन व्हेन the impedance of the circuit is minimum and the current in the circuit is maximum ठीक अछि। अब रेजोनेंस केते हबो रेजोनेंस cannot occur for all the frequency सब frequency रे you cannot get resonance for resonance we need a specific condition what is the condition xl must be equal to xc। तो जदि xl और xc इक्वल हेबे xc रो xl रो फार्मूला कोन ओमेगा l x रो फार्मूला कोन 1 बाय ओमेगा c तो केते हे जिवो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय lc हे जिवो बा ओमेगा केते ओमेगा हे जिवो 1 बाय lc रो स्क्वायर रूट ता माने जदी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू एतिक आसिला देन वी कैन गेट मिनिमम इंपेडेंस और मैक्सिमम करंट बा वी कैन गेट रेजोनेंस। तो ए जो फ्रीक्वेंसी अछि आकम लिखिबा ओमेगा r मीनिंग कोन रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा r रो फार्मूला हला कोन ना 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ l बाय c सॉरी lc 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ lc ता माने जदी एई फार्मूला पर क्वेश्चन आस पारे गोटे सीरीज एलसीआर सर्किट रे रेजिस्टेंस कहिथिबो इंडक्टेंस कहिथिबो कैपेसिटेंस कहिथिबो आ पचाथिबो जे कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द करंट विल बी मैक्सिमम बा द सर्किट विल बी इन रेजोनेंस। तो आमे एटा होची रिवीजन वीडियो रो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट रे मो बहुत गुडे क्वेश्चन सॉल्व करबी एई चैप्टर को बेस करके। तो एबे खाली मैं डिस्कस कर द ऑल द की कांसेप्ट एंड की फार्मूलाज देन आउ गुडे वीडियो रे हमें फुल क्वेश्चन सॉल्व करबा। द ओमेगा r होची 1 बाय lc रो स्क्वायर रूट तो ओमेगा को लिखि परबी 2 पाई फ्रीक्वेंसी तो हे जबो 2 पाई fr हे जबो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ lc तो fr केते आसीबो 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ lc ता माने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रो फार्मूला केते आसीबो 1 बाय 2 पाई lc रो स्क्वायर रूट ता माने जदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पचारची आमे ए फार्मूला यूज करबा दि खाली फ्रीक्वेंसी पचारची आमे ए फार्मूला यूज करबा ठीक अछि। तबे देखिबा जे रेजोनेंस रो केतरा प्रॉपर्टी कोन एग्जाम आसपारे जे राइट 2 और 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस। तो मन रखो रेजोनेंस रे कोन हुए इंपेडेंस हुए मिनिमम ठीक अछि। सो लेट मी राइट ऑल दिस पॉइंट्स वन बाय वन सो दैट यू कैन रिमेंबर। तो मन रखिबो रेजोनेंस रो यदि असला एग्जाम रे जे राइट 4 प्रॉपर्टीज बा 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड जतरा आस्थिबो क्वेश्चन रे राइट अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ला कोन प्रॉपर्टीज ऑफ रेजोनेंस तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कोन ना फर्स्ट प्रॉपर्टी होची कोन इंपेडेंस हबो मिनिमम तार वैल्यू केते इक्वल टू रेजिस्टेंस ओके इंपेडेंस विल बी मिनिमम दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ओके। आ कोन हबो करंट हबो मैक्सिमम आई नॉट मैक्स सेटा केते हे जिवो V नॉट बाय R हबो। सो मन रखो रेजोनेंस रे इंपेडेंस हुए मिनिमम करंट हुए मैक्सिमम इज दैट क्लियर दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कोन आसीबो ना
को फ्रिक्वेंसी रे बा व्हिच फ्रिक्वेंसी एट व्हिच फ्रिक्वेंसी वी गेट रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी रो फॉर्मूला कोन हबो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एलसी और आमे कहि परिबा एफआर केते हबो 1 बाय 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एलसी। ठीक अछि, एटा होची रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी रो फॉर्मूला और एटा होची रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी रो फॉर्मूला। जते फ्रिक्वेंसी माने एसी रो फ्रिक्वेंसी जते एथिके हे जिवो देन एक्सएल और एक्सी इक्वल हे जिवे। ठीक अछि, एंड वी गेट रेजोनेंस। ठीक अछि, थर्ड पॉइंट कोन जेमे कहउतली एक्सएल और एक्सी इक्वल हेबे। ठीक अछि, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दे विल बी इक्वल। नंबर 4 कोन आसीबो इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज को मैं लिखिबा v इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t। आई केते हबो देखो जदि xl टा ग्रेटर हे गेला नॉर्मल केस रे हम जो फास्ट केस डिस्कस करले जदि xl टा अधिक हो जिवो त करंट लैग करथला, जदि xc अधिक हो जिवो करंट टा लीड करथला। जदि xl और xc इक्वल हे जिवे त माने जदि में रेजोनेंस पाई गेले त कोन हबो वोल्टेज और करंट रहिबे सेम फेज रे। वोल्टेज एंड करंट विल बी इन द सेम फेज। तो आई को लिखिबी आई नॉट sin ओमेगा t ता माने कोन हबो फाई हे जिवो 0। ओके, द फेज डिफरेंस विल बी 0। ओके, तापरे आ कोन लिखिबा पावर फैक्टर। व्हाट इज द पावर फैक्टर? पावर फैक्टर होची cos फाई। पावर फैक्टर लागना cos फाई। जदि में से जो आमे जो ड्रॉ करथले फेजर डायग्राम फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट से में जो tan फे बाहर करथले tan फे केतला माने बका एमती गोटे फिगरटा मु आथरे कर दोची। एपट थला वी आर नॉट, एपट थला वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट, एपट थला खाली वी नॉट थला एडा को फाई कहउथले। तो हमें tan फाई केते लिखितले tan फाई थला केते वी एल नॉट माइनस वी सी नॉट बाय वी आर नॉट ताको हम लिखितले कोन ना tan फाई इक्वल टू आई नॉट कॉमन काटला परे केते होतला xl माइनस xc बाय r होतला। ठीक अछि, जोटा होचे हमरो माने tan फाई बाहर करथले। तो एठी देखिबा जे cos फाई केते होची यदि मैं ट्रायंगल लिखिबा cos फाई केते हिजबो cos फाई हबो b बाय h ता माने v r नॉट बाय v नॉट। तो cos फाई केते हबो v r नॉट केते ना i नॉट इनटू r आउ v नॉट केते हबो i नॉट इनटू z। काहे कि ना हम देखितले जे z होची v नॉट बाय i नॉट। तो केते हबो v नॉट हे जिवो i नॉट z हे जिवो। व्हाट इज z? z इज इंपेडेंस। तो i नॉट कटि गेला तो cos फाई केते हबो cos फाई हे जिवो r बाय z। तो एई पॉइंट मन रखो जे हमें जो कोचे पावर फैक्टर cos फाई सेटा होची r बाय z। तो जेहेतु रेजोनेंस से कोन होची r इक्वल टू z हेला बा z इक्वल r हे गेला तो cos फाई केते हिजबो 1 हे जिवो। cos फाई बा पावर फैक्टर विल बी 1 किबा आउ केमति कहि परिबा जेहेतु फाई हे होची 0 तो cos 0 केते 1 हे जिवो। तो मन रखो एट रेजोनेंस द पावर फैक्टर विल बी 1। ता माने कोन हबो वोल्टेज करंट रहिबे सेम फेज रहिबे आउ कोन हबो पावर हे जिवो मैक्सिमम। ता माने द पावर डिसिपेशन इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। दिस इज अनदर इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर रेजोनेंस। तो इंपेडेंस होची मिनिमम, करंट मैक्सिमम, XL इक्वल टू XC हे जिवो। द सर्किट विल बिहेव एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट काहे कि ना वोल्टेज करंट रहिबे सेम फेज रहिबे। द पावर विल बी मैक्सिमम, द पावर फैक्टर विल बी 1। दिस इज also maximum. So these are the important features but important properties of a series LCR circuit under resonance. तो ए different ए सब formula ऊपर भी क्वेश्चन आस पारे। बेसिकली क्वेश्चन आसीबो कोन ना टू फाइंड द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक अछि, तो आमे आ पर भी बहुत गुरे क्वेश्चंस करबा नेक्स्ट वीडियो रे बट एबे खाली हमें शॉर्टकट सब कहि देबा कोन को सब इंपोर्टेंट पॉइंट्स अछि। तो रेजोनेंस सरी गला परे नेक्स्ट में कौन माने डिस्कस करिवो ना व्हाट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर। तो जदि हमें गोटे ग्राफटा प्लॉट करिबा कहा भीतर ग्राफ प्लॉट करिबा। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। मन रख ए वर्ष सिलेबस रे सीरीज एलसीआर सर्किट रो इंपेडेंस डेरिवेशन नाही कोर्स रे ओनली यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला
आउ फॉर्मूला को बेस करके जहाँ भी किसी क्वेश्चन आसीबो यू हैव टू सॉल्व देम। सो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर बा क्यू फैक्टर। तो आम जानले जे गोटे सीरीज एलसीआर सर्किट रे करंट रो इक्वेशन कौन आसीबो बा आई नॉट रो वैल्यू केते हबो v नॉट बाय z हबो। ओके एंड z केते ना r स्क्वायर प्लस xl माइनस x0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक अछि। तो एबे में कौन करिबा देखिबा जे इंपेडेंस टा कांस्टेंट नुहे काहे कि ना जदी हमें एसी रो फ्रीक्वेंसी को चेंज करिबा एबे ओमेगा को चेंज करिबा तो xl चेंज हबो आ xc भी चेंज हबो। और जदी हमें xl और xc को चेंज करेले इंपेडेंस z भी चेंज हबो। आ इंपेडेंस z चेंज हबो करंट भी चेंज हबो। त माने करंट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मो भी गोटे ग्राफ टा प्लॉट करबी कहा भीतर ग्राफ प्लॉट करबी along x axis I will take omega माने angular frequency, along y axis I will take the peak value of current। ठीक अछि। तो आमे कोन देखले जते बेर ओमेगा हे जिवो ओमेगा r जते बेर ओमेगा हे जिवो ओमेगा r तो कोन हबो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा r जते बेर हबो सेते बेर कोन हबो करंट हे जिवो मैक्सिमम द करंट विल बी मैक्सिमम। तर वैल्यू केते हे जिवो v नॉट बाय z हुए तो v नॉट बाय r लिखिबा काहे कि ना एट रेजोनेंस z इज इक्वल टू r। ठीक अछि। तो ओमेगा r रे आमे मैक्सिमम करंट पाउचे। ठीक अछि। किंतु जदी मु कोन करिबि ना फ्रीक्वेंसी को कमे देबी ओमेगा r रो। ठीक अछि। एरा मन रखो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा r रे कोन होउची xl और xc इक्वल होसंती xl एंड xc आर इक्वल। जदि मु ओमेगा को कमे देबी ओमेगा r रो तले कोन हबो xl ला कमी जिवो xc बढ़ी जिवो काहे कि मन रखो xl होची कोन ओमेगा l xc कते 1 बाय ओमेगा c त माने फ्रीक्वेंसी कमेले xc बढ़िबो फ्रीक्वेंसी कमेले xl कमिबो। तो एई फ्रीक्वेंसी रे xl और xc इक्वल हेबे। जदि मु ओमेगा r लेफ्ट को जिबी त माने जदि मु ओमेगा को कमे जिबी xc रा बढ़ी बढ़ी जिवो xl कमे आसीबो। सो टू द लेफ्ट ऑफ ओमेगा r xl इज लेस देन xc। किंतु जदि मु ओमेगा r राइट को जिबी टुवर्ड्स राइट तले कोन हबो xl टा अधिक हबो देन xc। ठीक अछि। बट आउ कोन हबो जदि हमें एठी किछि वैल्यू पाइबा हमें कोन होची ना एट रेजोनेंस दिस वैल्यू बिकम 0 बट एट अदर फ्रीक्वेंसीज दिस वैल्यू इज नॉन जीरो। ठीक अछि। हमें जते ओमेगा जदि चेंज करि जिबा जते दूर को जिबा ओमेगा रो माने ओमेगा r लेफ्ट को जिबा कि राइट को जिबा कोन हबो इंपेडेंस बढ़ी जिवो आ कोन हबो करंट कमी आसीबो। आ जदि में से करंट रो वेरिएशन को स्टडी करिबा द ग्राफ विल बी लाइक दिस एमपी ग्राफ आसीबो बोथ साइड कोन हबो ना करंट कमी आसुची। आ हमें जो ग्राफ रे पाइले दिस ग्राफ इज ए सिमेट्रिक ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट दिस वर्टिकल लाइन। ता माने वर्टिकल लाइन रो माने राइट रे में जेमती देखुचे करंट कमी जाउची सेमती लेफ्ट रे भी करंट कमी आसीबो। बा हमें या कहि परिबा जदी मु एठी गोटे मिरर प्लेस करबी प्लेन मिरर प्लेस करबी तो एटा आ एटा हेबे कोन माने दे विल बी द मिरर इमेज। जदी एटा हेबो ऑब्जेक्ट इमेज हेबो एटा हेबो ऑब्जेक्ट एटा हेबो इमेज। ओके ता माने द ग्राफ इज ए सिमेट्रिक ग्राफ। तो कोन होची ना बोथ साइड रे कोन करंट डिक्रीज होची सिमेट्रिकली। तो एबे हम देखिबा जे व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर बा व्हाट इज द शार्पनेस। शार्पनेस माने कोन आमे देखिबा जे माने ओमेगा r बोथ साइड रे जते बेले आमे ओमेगा r लेफ्ट जाउचे किबा राइट को जाउचे करंट केते रैपिडली डिक्रीज करूचे करंट केते रैपिडली डिक्रीज करूचे। जदि ओमेगा r बोथ साइड रे करंट पूरा स्लोली डिक्रीज करूथिबो देन द शार्पनेस विल बी लेस बा आमे कहि परिबा द ग्राफ इज ए फ्लैट वन। किंतु जदि ओमेगा r आइदर साइड रे कोन होतिबो ना करंट बहुत रैपिडली डिक्रीज करथिबो देन वी गेट ए शार्प कर्व इट हैज मोर शार्पनेस। ओके से शार्पनेस को मेजर करिया पई गोटे फार्मूला अछि बा गोटे
क्वांटिटी अच्छी ताको में कहबा क्यू फैक्टर बा क्वालिटी फैक्टर आ से क्यू फैक्टर फॉर्मूला कौन हम फॉर्मूला हो ओमेगा आर एल बाय आर माने रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रिक्वेंसी इनटू इंडक्टेंस बाय रेजिस्टेंस बा तर आउटे फॉर्मूला कौन अच्छी 1 by r square root of l by c ठीक है जी सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर बा क्यू फैक्टर आ मन रखो क्यू फैक्टर जते अधिक आसीबो इट मीन्स द ग्राफ इज बा द शार्पनेस द कर्व इज मोर शार्प आपको मैं कहबा रेजोनेंस कर्व ठीक है एटा होची रेजोनेंस कर्व ओके तो जदि क्यू फैक्टर अधिक आसला द कर्व इज मोर शार्पर जदि क्यू फैक्टर कमी गला इट इज ए फ्लैट वन ठीक जी बा लेस शार्पर एंड क्यू फैक्टर इटा होची यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस इट हैज नो यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस तार किछि भी यूनिट किछि भी डायमेंशन नहीं इज दैट क्लियर ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्यू फैक्टर नेक्स्ट आम कौन डिस्कस करबा नेक्स्ट डिस्कस करब अबाउट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट गोटे एसी सर्किट रे एवरेज पावर केते आसीबो सो हम देखले कौन इन एसी सर्किट वोल्टेज करेंट भितर किसी फेज डिफरेंस थाई पारे न थाई पारे जदि आमे कहिबा प्योर रेजिस्टिव किबा ए रेजोनेंट सर्किट तो फाई 0 हो जिवो बट फॉर अदर केसेस फाई विल बी नॉन जीरो तो आमे गोटे जनरल केस नहीं जिबा एवरेज पावर फॉर्मूला कौन एवरेज पावर तो सपोज गोटे एसी सर्किट रे वोल्टेज को आमे लिखुचे केमती v नॉट sin ओमेगा टी लिखुचे आ सपोज व्हाट इज द करंट इक्वेशन I इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा टी -5 किबा +5 जहाँ भी थिबो तमने देयर इज ए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ओके तो जदि एमती अछि सिचुएशन अछि तो एवरेज पावर ऑफ फॉर्मूला कोन आसीबो द एवरेज पावर विल बी रिमेंबर दिस फॉर्मूला मु कहितली जे काहे कि इंडक्टिव सर्किट रे पावर 0 हो जाउची कैपेसिटिव रे पावर 0 हो जाउची ताके हम डिस्कस करिबा तो एवरेज पावर फॉर्मूला कोन Vrms Irms into cos phi Vrms Irms cos phi व्हाट इज cos phi हमें कहितले cos phi होची r by z ताको हमें कहिबा पावर फैक्टर cos phi केते r by z बा पावर फैक्टर तो Vrms को हम लिखि परिबी v नॉट by √2 Irms केते हबो I नॉट by √2 into इटी cos phi रहिला तो ढाई जीवो v नॉट I नॉट by 2 into cos phi तो एवरेज पावर रो फार्मूला आइदर एटा हे पारे किंबा एटा भी हे पारे देखो जदी आरएमएस वोल्टेज आरएमएस करंट देची तो एटा यूज करो पीक वोल्टेज और पीक करंट देची एटा यूज करो बट मन रखताओ यूजुअली कोन हुए जदी कहि छी जे 220 वोल्ट वोल्टेज अछि 5 एम्पीयर करंट अछि तमने बाय डिफॉल्ट जो वोल्टेज करंट गिवन थाए सेटा होची आरएमएस वैल्यू जदि क्वेश्चन मेंशन करथिबो जे पीक वैल्यू होची 220 वोल्ट देन भिनर केते 220 हबो बट जदि किसी मेंशन करेनी देन बाय डिफॉल्ट वी टेक इट टू बी द आरएमएस वैल्यू ठीक अछि तो मन रखो एवरेज पावर ऑफ फॉर्मूला कोन आसीबो एतिक आसीबो तो जदि हमें कोन करबा गोटे प्योर रेजिस्टिव सर्किट नबा फाई 0 हो जिवो ये फाई 0 हो गेला cos phi 1 हो जिवो तो एवरेज पावर केते बो Vrms Irms हम डिस्कस करथले ऑलरेडी बा v नॉट I नॉट बाय 2 हो जिवो किंतु जदि कोटे प्योर इंडक्टिव अछि सर्किट किबा प्योर कैपेसिटिव सर्किट अछि तो फाई हे जिवो पाई बाय 2 जदि में cos पाई बाय 2 लिखिबा cos पाई बाय 0 हो जिवो तो एवरेज पावर भी 0 हो जिवो ठीक अछि सो दिस इज द फार्मूला फॉर एवरेज पावर ठीक अछि इट डिपेंड्स अपॉन द फेज डिफरेंस ओके सो रिमेंबर दिस फार्मूला तापरे आमे देखिबा अबाउट द आइडियल करंट बा ताको हम कहिबा वाटलेस करंट तो मन रखो जदि आरएमएस वोल्टेज देची आरएमएस करंट देची देन हाउ टू फाइंड द पावर आरएमएस वोल्टेज into RMS current into the phase angle
into the cos of phase angle between them. तो सपोज आम इमेजिन करवा गोटे सर्किट रे कौन होची वोल्टेज लीड करुची करंट लैग करुची बाय एंगल फाई. सपोज एमती अछि फेजरटा एटा होची वोल्टेज रो फेजर एटा होची करंट रो फेजर ठीक अछि एंड ऑब्वियसली करंट टा लैग करुची वोल्टेज लीड करुची. तो एबे मैं कौन करी एबे मु करंट को कौन करी मैं देखिबा व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ करंट मुझे करंट को रिजॉल्व करी ठीक अच्छे. तो द कंपोनेंट ऑफ दिस IRMS एलोंग VRMS केते आसीबो IRMS cos phi आसीबो एंड द कंपोनेंट ऑफ IRMS परपेंडिकुलर टू VRMS केते आसीबो IRMS sin phi आसीबो ठीक अच्छे. एटा मन रखो इफ यू रिजॉल्व IRMS then you get the component IRMS cos phi along this line and IRMS sin phi perpendicular to this line. Okay, तो IRMS गोटे RMS वैल्यू IRMS cos phi को भी मैं गोटे RMS वैल्यू नहीं पारी भी मुझे पचारि जे व्हाट इज द पावर व्हाट इज द एवरेज पावर ड्यू टू द cos phi component what is the average power due to this cos phi component. तो हमें कौन लिखिबा what is the formula voltage रो value into current रो value हमें कहा को नीचे हमें cos phi करू नीचे into cos of the phase difference between them. देखो voltage current cos of phase difference. तो जदि मु IRMS cos phi पई पावर बाहर करूची कौन लिखी मु VRMS into IRMS cos phi into cos of phase difference between them. तो IRMS cos phi और VRMS भितर phase difference नहीं किछि तमे 0 अछि आकु cos 0 लिखिबे तो cos केते 1 तो केते बेटा VRMS IRMS into cos phi which is the average power total average power. किंतु यदि पचारि व्हाट इज द एवरेज पावर ड्यू टू what is the average power due to the sin phi component तो हमें कौन लिखिबा लिखिबा VRMS voltage value into current value जोटा हो IRMS sin phi into cos of the angle between the two. VRMS और IRMS sin phi भीतर एंगल केते अछि पाई बाय 2 अछि तो cos पाई बाय 2 लिखिबी what is cos पाई बाय 2 0 तो एटा हे जिवो 0 हे जिवो ठीक अछि. ता माने आमे कौन देखले एठी IRMS sin phi करंट पाई किछि भी पावर डिसिपेट होनी ता माने IRMS sin phi component dissipates no power in the circuit. That's why it is known as powerless current ba wattless current ba ideal current. Okay, so remember that IRMS sin phi होची ideal current. Okay, so a chapter last topic जोटा होची transformer and you may get a long question from transformer. तो transformer रो main काम कौन ना to increase or to decrease voltage ठीक अछि. आमे voltage को कमे परिबा voltage को बढ़े परिबा को voltage not DC only AC मन रखो. by using transformer we can only increase or decrease alternating voltage we cannot change a DC voltage. Okay, और ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल कौन ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल होची म्यूचुअल इंडक्शन. द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन ता माने कौन जदि गोटे कॉइल रे आमे गोटे वेरिएबल करंट पास करबा ताले कोन होबो ता नेबरिंग कॉइल रे गोटे EMF इंड्यूस होबो आ गोटे इंड्यूस करंट फ्लो होबो. और ट्रांसफॉर्म हो दुई प्रकार गोटला स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आ गोटे होची स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. स्टेप अप कौन ना से लो वोल्टेज को हाई करिवो लो टू हाई आ स्टेप डाउन कौन करिवो हाई को लो करिवो ठीक अछि. आ ट्रांसफॉर्मर थिबो दुईटा कॉइल गोटे होची प्राइमरी कॉइल गोटे सेकेंडरी कॉइल ठीक अछि. तो एनपी माने कौन नंबर ऑफ टर्न्स in primary coil
एन एस कौन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, एनपी होची नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, एन एस कौन ना नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो वोल्टेज कमेबा और बढ़ेबा कहाँ पर डिपेंड करिवो ना ऑन द वैल्यूज ऑफ एनपी एंड एनएस। मन रख जदि एनपी टा एनएस रु अधिक हो गला बा एनएस टा एनपी कमी गला ता माने प्राइमरी रे अधिक टर्न अछि सेकेंडरी रे कम नंबर ऑफ टर्न अछि सेटा हे जिवो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आ जदि एनपी टा कमी गला एनएस बढ़ी गला ता माने सेकेंडरी रे अधिक टर्न्स अच्छी देन प्राइमरी ताको में कहबा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। आ मन रखिता वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो जदि आमे एन एस और एनपी रो रेशियो बाहर कर देबा, सपोज इमेजिन करो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी केते अछि 50 अच्छी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी केते अछि 250 अच्छी। ता माने एन एस बाय एनपी रो रेशियो केते होची 250/50 माने 5 होची। तले VS बाय VP केते हे जिवो V 5 हे जिवो ता माने VS केते हे जिवो 5 * VP हे जिवो। ता माने आमे प्राइमरी रे बा इनपुट रे जेतिके वोल्टेज देथिबा मन रख इनपुट वोल्टेज दिया जिवो प्राइमरी को एंड आउटपुट दिया जिवो सेकेंडरी रो। तो जदि आमे एनएस को अधिक कर देचे देन एनपी एंड सपोज एनएस बाय एनपी द रेशियो इज 5 ता माने आमे प्राइमरी रे जेतिके वोल्टेज दबा सेकेंडरी कोन हबो वोल्टेज 5 गुणा हे जिवो 5 टाइम्स हे जिवो ता माने आको कहबा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक अछि, स्टेप डाउन कोन हबो एनपी को अधिक कर देबा एनएस कमे देबा रिवर्स कर देबा। सपोज मु कहबी एनपी अछि 200 एनएस केते अछि 50 अछि तो एनएस बाय एनपी ए कथा हबो 50/200 = 1/4 हला। तो एनएस बाय एनपी जहा VS बाय VP से एटा 1/4 हे जिवो तले VS केते हबो एटा हबो VP/4 हे जिवो ता माने सेकेंडरी वोल्टेज कोन हे जिवो एटा हे जिवो 1/4 टाइम्स ऑफ प्राइमरी वोल्टेज। ठीक अछि, सो दिस इज ऑल अबाउट योर वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ता सहित एमती भी क्वेश्चन आस पारे जे राइट फ्यू लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो बुक्स रे बहुत गुड लॉस देइची तो चारटा खन लॉस मन रख कहिना एग्जाम रे आसीबो एटलीस्ट आसीबो दुईटा किबा मैक्सिमम चारटा आसीबो। तो यू कैन रिमेंबर दैट कॉपर लॉस माने कोन जते बडे हमें कॉपर जो कॉइल बना है दैट कॉइल इज मेड फ्रॉम कॉपर। तो जिते बड़े गोटे करेंट फ्लो होची से कॉपर वायर रे ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट I² RT अमाउंट हीट लॉस हबो दैट इज वन लॉस। आ गोटे होची हमर फ्लक्स लीकेज जिते बड़े प्राइमरी कॉइल रो फ्लक्स लिंक होची सेकेंडरी कॉइल सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज लॉस्ट इन एयर। आ गोटे हम कहिबा एडी करंट लॉस। ठीक अछि, जिते बड़े ट्रांसफार्मर कोर रे जेरे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होची एडी करंट फ्लो हबो and to minimize the eddy current आमे कोन करिबा we have to use the laminated core। एटा मन रखिबो एटा बे एग्जाम आस परे जे what is the use of or what is the purpose of using laminated core in a transformer। तर आंसर कोन हबो ना to reduce the eddy current loss। ता सहित humming loss अछि hysteresis loss अछि। ठीक अछि, so at least you have to remember 4 losses। okay, so this is all about this chapter AC। जेमती मु कहली आज क्लास रे मु स्पेशली सब फॉर्मूला को रिवाइज करली, सब इंपोर्टेंट टर्म्स की पॉइंट्स कांसेप्ट को डिस्कस करली। बट आउ गोटे वीडियो आनिबी जो कि मु बहुत गुड़े क्वेश्चन सॉल्व करी एटलिस्ट 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करी सो दैट गोटे आइडिया पड़े आसीबो जे एई चैप्टर रो को टाइप ऑफ क्वेश्चन आसीबार अछि एंड हाउ टू अप्रोच दोस क्वेश्चंस। आई होप दैट दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। And if you like the video then please share it with your friends so that everyone will be benefited, and we'll again meet in the next video with some questions. So till then have a nice day and bye bye.